مسلم لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ؟ جانیے اصل حقیقت اور اس کا حل۔ نسلوں میں مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی، یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرام زادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانے میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا، اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی۔ یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے۔ ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرام زادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرام زادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا۔ اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا؟ اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا؟ یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا۔ آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکرٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ اسکرٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے، گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زانی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں، اس کے ران کو دیکھتا ہے، اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے۔ ہے کسی میں حس، ہے کسی میں شرم، ہے کسی میں حیا؟ کہاں گئی وہ حیا جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے؟ ہمارے آبا سے پوچھو، ہمارے داداؤں سے پوچھو، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی، کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی۔ آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں، گدھے اور گدھیاں کم زنا کرتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، یہ حیا کی قوم نہیں ہے، یہ شرم کی قوم نہیں ہے۔ آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتا ایک کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے۔ اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی، ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ اپنا ہونٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو؟ یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا؟ لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پینٹ پہننا، فل آستین کا شرٹ پہننا، لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا،
اور हाफ स्कर्ट पहनना, ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो और इस घनौनी साजिश को पहचानो, वरना याद रखो अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, ये हशर या औलाद तुम्हारे साथ करने जाएगी। असमत चख्ताई, तस्लीमा नसरीर, सलमान रुश्दी, क्या ये पैदाइशी मुसलमान नहीं थे? बल्कि मैं आपको बताऊं कि तस्लीमा नसरीन का बाप एक आलिम था। आलिम अपनी बेटी को रंडी बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को ईसाई बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को यहूदियों की गोद में भेज सकता था। आलिम बिल्ला, आरिफ बिल्ला था तस्लीमा नसरीन का बाप। लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा कि कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में जाने के बाद मेरी बेटी कल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पर और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी। तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। क्या तुम चाहते हो कि कॉन्वेंटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया, फातिमा के नाम से जन्नत रश किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूं, क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहां गई इनकी शर्में, कहां गई इनकी हया, कहां इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता? तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहां हमारी मां पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान मां शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहां से मिलते हैं ये सबक, कहां से मिलते हैं वो दर्स? आज कुतैजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई जहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला। ऐसी चीजें आज जो है इन जो है नौनिहालों के जहनों में, दिलो दिमाग के अंदर सबक की जाती हैं। अब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई, मैंने कहा ना कि कोई माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो दिन में वो कॉन्वेंट की तालीम पा लेता है, रात में हम 5 कलमे सिखा देंगे, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सिखा देंगे। अल्लाह की कसम ये धोखा है, धोखा है। ये अक्लमंदी नहीं है मेरे भाई, ये ईमान को सल्ब करते हैं, ये हमारे अकीदे पर डाका डालते हैं, ये अंदरूनी तौर पर हमारे मजहब को खोखला करते हैं। ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या ये काफिरों के घराने में पैदा हुआ था? ये भी मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ। मौत से पहले इसने वसीयत की थी
کہ میرے अंतिम संस्कार को हवा में बिखेर दिया जाए। तो चुनाचे जस्टिस हिदायतुल्लाह को इसी तरह किया गया। अस्मत चुगताई का घराना दीनदाराना घराना था। मौत से पहले अस्मत चुगताई ने जो सेक्स नॉवेल लिखा करती थी, उसने वसीयत की कि जिस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, मुझे भी कर दिया जाए। ये कौन है आरिफ मोहम्मद खान? ये कौन है अस्मत चुगताई? ये कौन है सलमान रुश्दी? ये यहूदियों का कोई मादरजात पिल्ला नहीं, ये अंग्रेज के नुत्फे से पैदा हुआ इंसान नहीं। इसका घराना उलमा का घराना, इसका घराना दीनदार घराना, लेकिन जिस जरिए से इसने तालीम हासिल की, उसे शुरू ही से नापाकी का सबक दिया गया, शुरू ही से इस्लाम की नफरत दिलाई गई। कॉलेजों और स्कूलों के जरिए से हमले पर इन्होंने बस नहीं किया, तो अब इंटरनेट आ गया। मजहब के नाम पर इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। इन 4 लाख वेबसाइट में 2 लाख वेबसाइट तो सिर्फ इन ईसाइयों के हैं, जो मुसलमानों के नाम पर, कुरान के नाम पर, बुखारी के नाम पर, हदीस के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर, फिक़ह के नाम पर 2 लाख वेबसाइट इन्होंने इंटरनेट के अंदर खोल रखे हैं, जिसके जरिए से इंटरनेट के चलाने वाले और उंगलियां दबाने वालों को ये तालीम दी जाती है, ये साजिश उनके अंदर खोली जाती है कि देखो रिवायतों के अंदर टकराव है। कभी आता है रफ़े दैन किया आका ने, कभी आता है रफ़े दैन नहीं किया, कभी आता है आमीन जोर से बोला, कभी आता है आमीन आहिस्ता बोला। मुसलमान एक कौम सीने पर हाथ बांधती है, मुसलमानों की दूसरी कौम नाप के नीचे हाथ बांधती है। इस्लाम अगर एक है तो मुसलमानों के तरीके क्यों गलत हैं? इसलिए उलमा कहते हैं कि अपने दीन को बचाना है, मदारिस से जुड़े रहो, उलमा से जुड़े रहो। ये इंटरनेट की पैदावार, इंटरनेट के अंदर इस्लामिक चैनल देखने वाले और वेबसाइट देखने वाले उस जहर का शिकार हो जाते हैं, जहां उनके जहन के अंदर ये चीज डाली जाती है कि देखो तुम्हारे हदीसों में इख्तलाफ है, तुम्हारे रिवायतों में तारुज है, और ये कलाम पाक के अंदर फिरका परस्ती है और काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है। कहा गया है फक्तुल मुशरिकीन काफा, के काफिर कहाँ मिले, मुशरिक कहाँ मिले, कत्ल कर डालो। इस किस्म की चीजें डालकर मुसलमानों के जहनों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। फिल्मों में काम करने वाला एक खान नाम का आदमी, उसके घराने में एक बच्चा ईसाई, एक बच्चा सिख और उसकी जोरू हिंदू नहीं है। वो कहता है कि मेरा घर सेकुलर घराना है। अगर इसको सही तालीम मिली होती, इसने कुरान की रूह को पहचाना होता, इसने हदीस को जाना होता, तो क्या अब जो है हिंदू बीवी से शादी करता। कितने मुसलमान कलाकार हैं, ये नाचने वाले हिजड़े हैं जो हिंदू से निकाह करते हैं और ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का हक अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का हक अदा कर रहे हैं। ज्यादातर ये नाचने गाने वाले हिजड़े अपने काफिरा बीवी को रखकर काफिरों को खुश करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इनको तालीम कहाँ से मिली? यहीं से तो तालीम मिली कि भाई मजहब आपस में बैर नहीं सिखाता, सब मजाहिब बराबर हैं, सब खुदा से मिलाने वाले हैं। गलत बात है, गलत बात है। कोई मजहब खुदा तक मिलाने वाला नहीं है, कोई मजहब अल्लाह तक जाने वाला नहीं है, कोई मजहब जन्नत तक जाने वाला नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। कलाम पाक ने साफ इरशाद फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, दुनिया में जितने तरीके हैं, वो जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। हम गैरों को खुश कर कर, उनका एहसान लेकर इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। हमें जरूरत नहीं तुम्हारे एहसान की, हमें जरूरत नहीं तुम्हारे करम की, मेहमान नवाजी की। हमारे आका का तरीका हमारे लिए काफी है, हमारे आका की मोहब्बत हमें दम भरने के लिए काफी है। घर घर के अंदर शाहरुख खान पैदा हो चुका है, घर घर के अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह पैदा हो चुका है, जो नाम के मुसलमान हैं, अंदरूनी तौर पर कोई अकीदा नहीं, नाच गाना देखते हैं कोई असर नहीं। कहाँ कल हम किसी घर को पहचाना जाता था कलाम पाक के तिलावत से। सुबह में सूरह यासीन की आवाजें आती थी, रात में सूरह वाक़िया की आवाजें आती थी, दिन में जिक्र अस्कार और दरूद पाक की। आज ये कान तरसते हैं कि
किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आ जाए, अगर किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आती है तो ये दिल में यकीन जम जाता है कि आज इस घर के अंदर कोई मौता हुई है, कि ये कुरान जिंदों को जिंदगी बख्शने के लिए आया था, आज मौता के सामने से पढ़ने के लिए रख दिया गया है। गानों से गूंज रही है ये फिजा, नाच से गूंज रही है ये फिजा, थिरक रही है, तड़प रही है, ये केबल कलेक्शन की वजह से। ये हया को और इस जो है दर्स को कौन दिया, इस जो है सबक को कौन दिया? इन्हीं कॉन्वेंटों ने दिया। पढ़ाने वाला ईसाई टीचर अपने स्टूडेंट्स को यूं कहे कि मक्के में 10 साल रहने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात भागकर मदीना चले गए। वो कभी हिजरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे भागकर चले गए। जब बाप आलिम के पास नहीं जाता, अम्मा कभी आलिम से मसला नहीं पूछती, अम्मा ने कभी बाल कटाने से पहले किसी आलिम से फतवा लिया था, अम्मा ने कभी 16 सेंटीमीटर की चोली पहनने से पहले किसी दारुल इफ्ता से फतवा मंगाया था, अम्मा ने कभी देवर के साथ मिलकर सनीमा जाने से पहले कभी किसी आलिम से, मुफ्ती से, अल्लामा से फतवा लिया था, इस अम्मा ने कभी शौहर की गैर मौजूदगी में आशिक से बात करते हुए और अपने जो है बॉयफ्रेंड से कॉलेज के जमाने के बात करते हुए जब मां ने नहीं पूछा। अब अगर कोई कहता है कि साहब अगर तालीम होती है तो इन्हीं इदारों में होती है, हमारे स्कूलों के अंदर तो तालीम नहीं होती। ये डॉक्टर अबुल कलाम जो हिंदुस्तान के सदर हैं, उन्होंने क्या कॉन्वेंट में तालीम पाई थी? अग्नि और परतवी उन्होंने जो मिसाइल बनाई, ये कॉन्वेंट में तालीम पाकर बनाई। दुनिया के जो मशहूर साइंसदान हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं और अबुल कलाम हैं, ये सब जो है ये इन्होंने क्या कॉन्वेंटों में तालीम पाई? डॉक्टर अबुल कलाम एक स्कूल का इफ्तिताह करते हुए खुद उन्होंने कहा कि मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम स्कूल से शुरू हुई। कौन कहता है यहां तालीम नहीं होती? अगर फर्ज कर लो कि कॉन्वेंटों के मुकाबले में तालीम यहां कम भी होती है, कॉन्वेंटों के मुकाबले में यहां डिग्रियां कम भी मिलती हैं, लेकिन ईमान तो बच जाता है, पाकी तो बच जाती है, नमाज तो मिल जाती है, हया तो मिल जाती है, शर्म तो मिल जाती है। अरे डिग्री पाकर ईमान खोने से क्या फायदा? ईमान की कोई कीमत नहीं, ईमान की कोई कदर नहीं। तो हमारे पास ईमान की कोई कीमत नहीं है, यही डिग्रियां सब कुछ है। और एक दूसरी बात, बुनियादी बात याद रखो, इंसान की जो कमाई है उसका ताल्लुक इल्म से नहीं है। कितने तालीम याफ्ता हैं जो झक मारते हैं दूसरों के यहां जाकर 1500 की नौकरी किया करते हैं, और कितने अन्नाड़ी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जमीन आसमान के दौलत के खजाने खोल रखे हैं। तो किसने बताया आपको कि कॉन्वेंट में पढ़ोगे डिग्री मिलेगी तभी आपको रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा? क्या हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक ताला ने हमारी मां के पेट में हमारी रोजी को नहीं लिखा था? ये कॉन्वेंट वाले हमारी रोजी को लिखेंगे? ये ईसाई मिशनरीज वाले हमारी जो है मुकद्दर को लिखेंगे? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में जितने चौपाए हैं और जितनी मखलूक है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। तो ये आयत झूठी है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह वही है जो रोजी देने वाला है। ये आयत झूठी है, कह दो कि झूठी, कि जब तक कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे डिग्री नहीं मिलेगी, और डिग्री नहीं मिलेगी रुपया नहीं मिलेगा, और रुपया नहीं मिलेगा डिग्री नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। अरे ईमान खोकर, जन्नत को खोकर, अल्लाह के अजाब को मोल कर, जहन्नम के लहू और पीप को मोल कर, अर्श के साये को ठुकरा कर, हौज़े कौसर के पानी को ठुकरा कर, ये झूठी डिग्रियां लेकर क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कोई लड़की तस्लीमा नसरीन बनेगी, ज्यादा से ज्यादा कोई लड़का सलमान रुश्दी बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इस उम्मत का कोई फर्द शाहरुख खान बनेगा, ज्यादा से ज्यादा जस्टिस हिदायतुल्लाह बनेगा। मरेगा रंडियों पर, मरेगा इन नाचने गाने वालों पर। क्यों मरते हैं मुसलमान? क्यों मरते हैं इन पर? ये क्यों दिलों में नाचने वालों की मोहब्बत, इन जानियों की मोहब्बत, इन दाढ़ी मुड़ाने वालों की मोहब्बत? एक फिल्म के अंदर एक लड़की को मां बनाया और उसी दूसरी फिल्म में इंटरवल के बाद उसी फिल्म के साथ जो है विलन बनकर उसकी आबरू लूटता है, जिसके पास मां और बेटी की कोई तमीज नहीं।
जो कौम को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि देखो मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूं, मेरे आशिकों, मेरा मूत पीने वालों, मेरे नक्श कदम पर चलने वालों, दुनिया में भी मेरे साथ, जहन्नम में भी मेरे साथ, मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूं, ये साबुन मेरी जोरों को गोरा कर दिया, ये साबुन मेरी बेटी को परी कर दिया। झूठ बकता है पैसा लेकर, घरों में नाच गाना इनका, रात में सोते हैं नाच गाना इनका, सुबह में उठते हैं इनका। हजरात, हमारे उर्दू मीडियम स्कूल हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने स्कूलों के मैदान के अंदर कदम रखा है। इन्हीं उर्दू मीडियम स्कूलों से, इन्हीं हमारे मसाजिद के मकातिब से और मदारिस से वो इन मकाम तक आए। मौलाना हसन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी कॉन्वेंट के अंदर दाखिल किया था? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर उन्होंने जो ललकारा हिंदुस्तान के सियासतदानों को, और उन्होंने जो चैलेंज दिया, क्या ऐसा चैलेंज आज तक किसी मुसलमान लीडर ने दिया? हर लीडर बिका था, हर लीडर ने ज़मीर फरोशी का सबूत दिया था, ईमान फरोशी का सबूत दिया था, कौम को दांव पर लगाया था। एक लम्हा बताओ हजरत मौलाना फिदाए मिल्लत असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने अपने ईमान को बेचा हो कुर्सी के लिए। जब ये बात आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ये मुस्लिम का लफ्ज निकाल दिया जाए, बड़े बड़े ऐवान के अंदर मुस्लिम लीडरान थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, सबकी जुबान पर साम सूंघ गया था, लखवा मार गया था। ये था फिदाए मिल्लत का जिगर गोशा, जिसने कहा कि असद मदनी अपनी जुबान से मुस्लिम का लफ्ज चाट चाट कर खत्म कर देगा अगर तुम बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू का लफ्ज खत्म कर दो। कौन सी कॉन्वेंट के अंदर उन्होंने तालीम पाई थी? कौन से ऑक्सफोर्ड के अंदर उन्होंने पढ़ा था? यूकेजी एलकेजी के बच्चे को तराजू के एक पल्ले में रखो, उसकी किताबों को दूसरे पल्ले में रखो, किताबें वजन हो जाएंगी, बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। ये क्या है साजिश कि तालीम का इतना बोझ दिया जाए, इतना बोझ दिया जाए कि जब कॉन्वेंट की तालीम के बाद बच्चा घर को आए तो माँ ट्यूशन में लगा दे, माँ होमवर्क में लगा दे, कि उसे कुरान पढ़ने की फुर्सत ही ना मिले, उसे वजू सीखने की फुर्सत ही ना मिले। इतना उसको जो है लगा दो तालीम के पीछे, इतना होमवर्क दे दो, इतने सब्जेक्ट दे दो कि फिर वो कुरान पढ़ने की नौबत ना आए। ये कॉन्वेंट ज़दा मुसलमान जब बड़ा होता है और उसकी बच्ची जवान होती है, हजरत अपनी बच्ची का पर्दा करा लो हाजी साहब, नमाजी साहब, ये बच्ची तुम्हारी गोशा हो गई, तो कहता है अजी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या हुई, बच्ची गोशा हो गई, कल किसी जानी के साथ जाएगी तो फिर 90 महीने में किसी नर्सिंग होम के अंदर एडमिट होकर हराम का पिल्ला जलेगी। और ये कॉन्वेंट ज़दा बाप कहता है कि हमारी बच्ची की क्या उम्र हुई। ये सब कहाँ की देन है कि स्कूल चल रहे हैं। आज जो है हसनात कॉलेज है और मुसलमानों के कितने इदारे हैं कि जहाँ पर मुसलमान पढ़ सकते हैं। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि कॉन्वेंट के इदारे ये जहर हैं, ये हमारे एतकाद और ईमान को खोखली करने वाली चीजें हैं। अगर न समझोगे तो फिर तैयार हो जाओ किसी तस्लीमा नसरीन के इंतजार में, फिर तैयार हो जाओ किसी सलमान रुश्दी के इंतजार में, और फिर कल ना कहना कि मैंने अपने बच्चे को काश कुरान पढ़ाया होता, काश दीन सिखाया होता, काश किसी कॉन्वेंट में दाखिला ना दिलाया होता। हजरत मौलाना इरशाद साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़िया बयान किया है, बड़ा इबरतनाक वाक़िया है। क्या तुम चाहते हो ये वाक़िया फिर दोहराया जाए, ये तारीख फिर दोहराई जाए? ऐसे कॉन्वेंट ज़दा मुसलमान, ऐसे सेकुलर मुसलमान, ऐसे माँ बाप के नाफरमान मुसलमान क्या फिर दोबारा जन्म लें? हजरत मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा एक इलाके में मैं नमाज के लिए गया, नमाज पढ़ने के बाद जनाजा रखा हुआ था, जनाजे के अंदर मैं शरीक हुआ, सलाम फेरने के बाद मैं बाहर आ गया, सलाम फेरने के बाद मैं बाहर आ गया तो कुछ लोग थे जनाजे के सामने दुआ वुआ कर रहे थे और उनमें से कोई आदमी अभी बाहर नहीं आया था। बाहर आने वालों में मैं पहला शख्स था। मैंने एक आदमी को देखा, टाई लगाए हुए, हेयर स्टाइल बनाए हुए, इन शर्ट किए हुए, अमेरिका का सूट और बूट पहने हुए, इधर से उधर टहल रहा है और उधर से इधर टहल रहा है। हजरत अक़दस मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा
کہ شاید یہ مردے کا کوئی دشمن رہا ہوگا، یہ مردے کا کوئی حریف رہا ہوگا اور اس کا کوئی مد مقابل رہا ہوگا کہ اتنی دشمنی کہ مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے جرأت کی کہ پوچھ تو لوں کہ بابا تم کون ہو، تو میں نے جب دیکھا تو میری داڑھی کو اور میرے لباس کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں نے سمجھ لیا یہ مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام کہ حضرت آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی، زندہ پنے میں دشمنی تھی، موت کے بعد دشمنی کے کیا معنی؟ یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اور حریف نہیں تھا، وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں میرے ابا جان کا جنازہ ہے۔ مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کل یہ وقت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے، کوئی تسلیمہ نسرین پیدا ہونے سے پہلے، کوئی عصمت چغتائی پیدا ہونے سے پہلے، کوئی بش کا پلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ عمر کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ کیا اسامہ کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ یہی آستین کے سامنے وہ طالبان کی کٹر اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو نہیں چاہتے تھے۔ ایک طرف ملا عمر کا ٹولہ تھا اور دوسری طرف ناردرن الائنس کا ٹولہ تھا۔ اگر یہ ٹولہ نہ ہوتا قیامت تک امریکہ افغانستان کے اندر قدم نہ رکھتا۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوینٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب 1 سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مئی میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا۔ اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے، یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے اولاد کو کام نہیں آئیں گی۔ ارے ہم کس کھیت کے ملی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کہیں صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری اپنے خاندان کو نہ بچا سکے، اس بخارا اور سمرقند کی مسجدوں کے اندر ڈانس اور کلب بن گئے جب انہوں نے عیسائیوں کی تعلیم کو سینے سے لگایا۔ امام بخاری جن کی کتاب حدیثوں کے اندر مستند ترین کتاب ہے، وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو نہ بچا سکے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری اولاد کو بچا دیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کانوینٹوں میں پڑھایا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو موت سے پہلے جمع کر کر نہیں کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی؟ میرے بچوں میری روح اس وقت قبض ہوگی جب تم میرے ہاتھ پر عہد و پیمان کرو کہ جس طرح میری زندگی میں تم کفر نہیں کیا کرتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے، میری موت کے بعد بھی تم ایمان پر قائم رہو گے۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے، امام بخاری کے خاندان کو ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے۔ سمنخر بخارا میں آج مسلمان بیٹیوں کی آبرو کیا نہیں بک رہی ہے؟ کیا عزتیں نہیں لٹ رہی ہیں؟ کیا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سمنخر اور بخارا کی طرح کلب اور ناچ گانے کے اڈے بن جائیں؟ کیا گھر گھر میں تسلیمہ نسرین پیدا ہو جائے، سلمان رشدی پیدا ہو جائے؟ مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا حساس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تعلیم کئی جگہوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔